So first I have to tell you that we are having reading week. Okay. So I think that you already have gone, you have already have got that. So there will be a mock test for you. Mock test on December 24th. Okay, that is Thursday. For students and faculty at 6:15 p.m. It will be at 6:15 p.m. Kindly inform your respective kindly inform to your respective groups so that all students may get well acquainted to e-box test environment. ये जो आपका ये mock test recording. Okay, so there will be a mock test. As you already have got reading week. Reading week is 1 week before before your actual evaluation week. Okay, so your evaluations have been shifted to January. I think you have got the mail from Dean office. There will be a mock test that will be on December 24th. That will not be evaluated. It will be held on December 24th and it will be at 6:15 p.m. Okay, it will be for 20 minutes. It will be for 20 minutes. It will be only for your practice so that you are familiar with the environment of e-box. That will be on e-box. Okay, so you already you are using this e-box in your labs. There will be a mock test on December 24 at 6:15 p.m. That will test will be for 20 minutes. So everybody has to be informed. You can inform your friends also. Okay, we can check any. So we can. This mock test is held so that we can check if there are any issues, right? Because 25. So this test is compulsory to give. And there is no syllabus for this mock test. Okay, there is no such kind of syllabus for this mock test. It is just general test to give you the experience of e-box. Okay, and information regarding this test will also be uploaded on LMS, and I hope that you are checking LMS. You have to follow the content, everything that is present on the LMS. Okay, so you have to follow LMS religiously. Another thing I wanted to tell you was, I hope you are aware about functions. Now today I will बीच में unmute कर, I have allowed you to unmute yourself, so please respond to me. Okay, in between. So so we have already done functions. So I taught you that there are three things that we talk about in functions. One is the function declaration. Okay, one is the function declaration. Then in main we have function call. I just want to inform you about one thing. And lastly we have a function definition. Okay, so we have function definition. So whenever we are writing a program, so these things we have to take care. Okay, so जब मैं ये लिख रही हूँ hash include stdio.h. okay, और फिर उसके बाद में I write int main and then I can write here printf. So initially when we had not done the functions, then I used to tell आप ये समझो कि जो printf है और scanf है उसका उसका जो कोड है वो इसके अंदर पड़ा है header file. No, but it is not so actually, because ये जो stdio.h header file है इसके अंदर सिर्फ इस printf scanf या जो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड हमारे फंक्शंस होते हैं उसकी सिर्फ डेक्लेरेशन पड़ी होती है. क्या होता है इन सब की ओनली फंक्शन डेक्लेरेशन होती है. ओके, ठीक है. ये stdio.h में इस हेडर फाइल में फंक्शन की डेक्लेरेशन होती है. कौन से फंक्शंस की? printf के फंक्शन की, scanf एंड अदर IO related functions. Similarly जो आपका string.h या आपके math.h, so I'll be talking about math.h now. Okay, this is math.h. So इस header file में क्या होता है? We have function declaration. We have a function declaration of which functions? Which function? sqrt function आपका होता है, then आपका power function है. ये सब आपका
जो भी आपके ये सारे फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस की डिक्लेरेशन होती है। या अच्छा, इस डिक्लेरेशन को और क्या कहते हैं? इस डिक्लेरेशन को हम क्या कहते हैं? प्रोटोटाइप भी तो बोलते हैं। यस, ओके। फिर इनकी डेफिनेशन कहाँ होती है? इनकी डेफिनेशन जो होती है, जो इस प्रोग्राम के लिए जब हम यूज करते हैं, सो आई होप जब आपने क्या था वो, लाइफ साइकिल ऑफ अ सी प्रोग्राम, लाइफ साइकिल ऑफ अ सी प्रोग्राम में जब हमने किया था, उसमें देयर वाज अ थिंग कॉल्ड लिंकर। यू रिमेम्बर दैट? अगर नहीं याद है तो पीछे जाके देखना। वहां लिंकर में आया था कि इस हेडर फाइल से जो भी रिलेटेड इसकी डेफिनेशंस होती हैं, जो और फाइल्स हैं, सो दोज फाइल्स आर लिंक्ड बिफोर द एग्जीक्यूशन। तो जब हम इसको कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूशन से पहले एग्जीक्यूट जब करते हैं, तो फिर ये सारी जो हमारे पास में फाइल्स हैं, ये भी लिंक होती हैं। और ये लिंक होने पे क्या होता है, इनकी जो डेफिनेशन होती है, ये सब इनके जो फंक्शंस हैं, जिनकी यहाँ डेक्लेरेशन यहाँ इंक्लूड हुई थी, हमने पहले इंक्लूड किया, अब इनकी डेफिनेशन यहाँ पर अटैच होती है। गॉट इट? So this was the thing that I had to clarify you. इनिशियली हमने ये किया था, मैंने आपको बहुत, द फर्स्ट लेक्चर था, बिकॉज एट दैट मोमेंट यू वर नॉट अवेयर अबाउट फंक्शंस, के क्या होते हैं फंक्शंस, क्या होता है रिटर्न टाइप, वी वर नॉट अवेयर। सो एट दैट टाइम आई हैड टोल्ड यू कि ऐसा समझो कि प्रिंटफ एंड स्कैनफ की डेफिनेशन या इसके बारे में कुछ यहाँ इस पे लिखा हुआ है। ओके, हु इज टॉकिंग इन बिटवीन, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, तो बट एक्चुअली क्या होता है, आई एम रिपीटिंग दिस, एक्चुअली what happens, so again I'll have to otherwise I have to mute you all then. Anyways, so ये stdio.h, math.h, stdlib या string.h, ये सब क्या है, हेडर फाइल्स। इसमें फंक्शन डेक्लेरेशन होती है या प्रोटोटाइप होता है। ठीक है, जो हमने 3 चीजें हमने पढ़ी थी एक फंक्शन के अंदर, डेक्लेरेशन, कॉल एंड डेफिनेशन। फाइन। तो कॉल तो तभी होगा जब ये सब मेन फंक्शन में, मेन में हम ये printf scanf सब रखते हैं। जो definition होती है, that is actually linked during the life cycle of a C program when you are compiling and executing the program. Okay, okay, now let's come back to our lecture. So another thing that you are that I have just told you, वो है आपका mock test। ठीक है, तो उसकी information आपको LMS पे भी आएगी, and you have to follow the slides, the content that is present on the LMS religiously. Okay, so we were on now insertion. So in last class we had done so many examples related to arrays, के arrays को कैसे हम read करते हैं और कैसे उसको display कराते हैं, right? फिर एक एरे के एलिमेंट्स को हमने लिखा था और फिर उसके एड्रेसेस को भी हमने प्रिंट करवाया था। ओके, एंड वी हैड आल्सो फाउंड लार्जेस्ट वैल्यू अमंग्स्ट द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। सो नाउ वी हैव टू गो थ्रू the insertion. If you have to insert any element in an array, so let us so first we'll see the concept. पहले हम concept को समझेंगे and then we will switch to program, right? प्रोग्राम मे लुक लेंथी टू यू। आपको लगता है कि, हो सकता है कि आपको लगे कि अरे ये तो बहुत लंबा है, बट अगर आपको समझ में आ जाता है कॉन्सेप्ट तो फिर आपको लंबा नहीं लगेगा। ओके, तो व्हाट विल बी द कॉन्सेप्ट इन एरे फॉर इंसर्शन of an element in an array? So let us suppose we are given this array 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. These are the elements. This is the array of 10 elements. Now if you want to insert any element, तो अगर आप इसमें कुछ इंसर्ट करते हैं तो सबसे पहले आप ये पूछोगे कि कौन सी पोजीशन पर इंसर्ट करना है, फर्स्ट पोजीशन पे है या लास्ट पोजीशन पे है या इन बिटवीन है। यूजर से अगर आप पूछते हो तो वो आप वैल्यू को इनपुट करवा लेंगे। ठीक है, वो वैल्यू हमारे पास में इस समय क्या है, पोजीशन इज इक्वल टू 5 या पोजीशन। ठीक है, नाउ लेट अस सपोज ये यूजर कहता है, यूजर इनपुट करता है 5। ओके, मतलब 5th पोजीशन पर आपको एक एरे के एलिमेंट को इंसर्ट करना है, राइट? 0 1 2 3 4, yes, but that position, see index, you know, the user doesn't know। 5th पोजीशन पर आपको ये एलिमेंट को इंसर्ट करना है। सेकंड विल बी, आपको कौन से एलिमेंट को इंसर्ट करना है। अब ये भी एलिमेंट कौन करेगा इनपुट, यूजर इनपुट करेगा।
राइट. सो यू हैव टू गेट टू थिंग्स फ्रॉम द यूजर. सबसे पहले चलो एक तो पहले क्या है कि एरे आपके पास में होना चाहिए, सो दैट यू कैन टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर और यू कैन टेक डायरेक्टली एलिमेंट्स. Other things that you have to acquire from user will be two things. First will be आपको कौन से पोजीशन पर एक एलिमेंट इंसर्ट करना है. ओके. नेक्स्ट थिंग विल बी क्या आपको इंसर्ट करना है, what should be the value. Okay, what should be the value of this data, what data do you want to insert in an array. Okay, तो उसके हिसाब से अब हम क्या करते हैं. देखो, अगर मेरे पास में 10 एलिमेंट्स हैं और अगर मैं जैसे आप आई हैव 10 स्टूडेंट्स सिटिंग ऑन डिफरेंट सीट्स, ठीक है, एक ही रो में सब बैठे हैं. अगर मैं कहती हूँ कि 5th पोजीशन पर एक और यहाँ पर एक स्टूडेंट और बैठ जाए, क्या होता है, ये सब इनको तो पीछे होना पड़ेगा ना, किसी को तो यहाँ पहले से स्पेस देनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. तो यहाँ ये जो एंड है हमारा, ये बंद होता है. तो यहाँ से हम कुछ भी आप इसको आगे नहीं डाल सकते, बिकॉज दिस इज ओनली 0th पोजीशन. यस, ये जो हमारा 10 एलिमेंट है, इसको हम क्या करते हैं, इसको एक नेक्स्ट पोजीशन देकर, एक्स्ट्रा पोजीशन देकर इसको हम शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट. लेट अस सपोज यहाँ पर मेरे पास में एक क्या है, एक और बॉक्स बना हुआ है खाली. सो आई विल शिफ्ट दैट 10 देयर. 9 विल बी शिफ्टेड दिस प्लेस जहां अब 10 पड़ा है. 8 विल बी शिफ्टेड टू दिस प्लेस जहां अब इस समय 9 पड़ा है. 7 will be shifted to this place जहां अब 8 पड़ा है. Similarly 6 will be shifted and this 5 will be shifted. जब ये 5 इधर शिफ्ट हो गया तो ये अब पोजीशन क्या है आपके पास में एक्स्ट्रा, और उसमें आप क्या कर सकते हैं, जो भी आप 50 यहाँ इस आपने यूजर से इनपुट कराया है, आप इस पोजीशन पर क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे. ठीक है. यस, तो ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट कि हाँ चलो ऐसे ऐसे इसको मूव कर देते हैं. अब इसको हमने कैसे लॉजिक लगा के, हाउ डू वी हैव टू फ्रेम अ प्रोग्राम फॉर दिस. हम पहले क्या करते हैं, पहले मुझे इस एंड ऑफ द एरे पे काम करना है, राइट. तो हाउ विल आई वर्क, सी आई हैव टू रीच दिस पोजीशन. ये वाली जो पोजीशन है ना, इसके ऊपर यहाँ मुझे पहुंचना है. और साथ में क्या करना है, एक एक एलिमेंट को शिफ्ट करना है. यस, शिफ्ट करना है. शिफ्टिंग कैसे होती है, वो हम असाइनमेंट ऑपरेटर से कर सकते हैं. ठीक है. जैसे अगर मैं देखो, अगर मेरे पास में ये A8 है और ये A9 है, तो आपको मैंने एक बार करवाया था, आई विल इंसर्ट वन स्लाइड हियर. आपको मैंने एक बार ये कराया था, अगर मेरे पास में इंट A3 है, उसमें मैंने किसी और एलिमेंट का डेटा डालना है. तो मतलब क्या, यहाँ पर मैं A5 का डेटा डाल सकती हूँ. यस, ठीक है. सो दिस विल ऑल्सो बी अ कैपिटल ए. तो मतलब क्या कि जो ये A5 में पड़ा है वो अब A3 में शिफ्ट आ जाए. ऐसे अब आप क्या करोगे, जो भी आपका A4 में पड़ा है या A3 में है, लेट अस सपोज, तो वो A4 में चला जाएगा. मतलब यहाँ से एक एलिमेंट जो है वो आगे आप उसकी वैल्यू को शिफ्ट कर रहे हो. ठीक है. यू आर जस्ट शिफ्टिंग द वैल्यू. अब शिफ्टिंग कैसे होती है, दैट इज डन विद द असाइनमेंट ऑपरेटर. हमें पता है जब हम असाइन कर देते हैं तो मेरे पास में ये शिफ्टिंग इज पॉसिबल. ठीक है. चलो, मतलब यहाँ से शिफ्टिंग जो होगी वो यहाँ से हम असाइनमेंट ऑपरेटर से कर लेंगे. बट नेक्स्ट थिंग इज दैट ये तो हमें प्रोसेस बार बार रिपीट करना पड़ेगा. यस, एंड फॉर रेपिटेशन वी यूज लूप्स. ठीक है. तो अब हम इसमें लूप्स यूज करेंगे. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ इस पोर्शन पे मेरे को यहाँ लूप इम्प्लीमेंट करना है एंड आई हैव टू रीच. ये लूप जो है वो पीछे से शुरू हो रहा है एंड इसका लास्ट पॉइंट क्या होगा. अगर ये पीछे से शुरू हो रहा है तो हम माइनस माइनस का लूप इम्प्लीमेंट कर देंगे, लेकिन लास्ट पोजीशन जहां हम वैल्यू देते हैं कि कंडीशन देते हैं, तो वो लास्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, वो हम यहाँ इधर इस पोजीशन को लेंगे. दैट दिस लूप शुड गो फ्रॉम 10 to 5. ठीक है. और इंक्रीमेंट की जगह हम डेक्रीमेंट लगा देंगे. ओके. यहाँ पर हम शिफ्टिंग कर देंगे और लास्ट में जब हम इस पोजीशन पर पहुंचेंगे, देन ये 50 को हम यहाँ सीधा असाइन कर देंगे. सो दैट विल बी डन अगेन विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर. ओके. सो लेट्स गो थ्रू द प्रोग्राम. फर्स्ट. ओके.
तो हमने सबसे पहले क्या इनपुट लेना है, सबसे पहले मेरे पास में एक एरे है, ये एरे है मेरे पास में, ये एन आई ये सब कुछ वेरिएबल्स मैंने कुछ लिए हैं, कि हम पहले देख लेते हैं आगे हमने हमने क्या लिया है, देन वी कैन डायरेक्टली डिक्लेयर दीज वेरिएबल्स। ओके, तो फर्स्ट मेरे पास में क्या है, प्रिंट एफ हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू टेक इनपुट इस एरे के लिए। सो फर्स्टली आई एम फोकसिंग ऑन दिस एरे दैट हाउ मेनी नंबर्स डू यू वांट टू टेक इनपुट। आपको पता है कि एक एरे को कैसे इनपुट करते हैं, कैसे इनपुट करते हैं, एक लूप लगाते हैं, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है। लूप के अंदर क्या रखेंगे, scanf, yes, and there I will be taking array I. Okay, this is a method to take input of an array. ठीक है, ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर इस एरे के अलावा और क्या होना चाहिए, आपको एक पोजीशन पता करनी है यूजर से, और दूसरा वैल्यू ऑफ द डेटा जिसको आपको इसमें डालना है। चलो अब हम इसके रिगार्डिंग अब हम करते हैं। सो एंटर द नंबर टू बी इंसर्टेड, मतलब जो 50 डेटा, सो दैट यू आर टेकिंग इन नम वेरिएबल, वो आपने यूजर से इनपुट करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसी नंबर को आप कौन सी पोजीशन पर वहां पर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वो हमने यहाँ पर POS is the variable, इसको आप क्या, that is representing the position where you want to insert that variable. Okay, so these are the things where you have to take the input. अब input हो गया है, so now what you have to take, so now what we have to take, अभी हमने क्या देखा था कि हमने इसमें इस एरे में मूव करना है, क्या, these elements have to be moved, yes, तो लास्ट हम पोजीशन लेते हैं और कहां तक जाएगा, यहाँ पर मेरा लूप यहाँ इस पोजीशन तक 5 तक। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम परफॉर्मिंग दिस लूप दैट इज फ्रॉम एन आपका यहाँ पर जो एन आपने नंबर ऑफ टर्म्स लिए हैं टोटल 10 हो सकता है, 5 हो सकती है एरे का साइज, ठीक है, तो और कहां तक जाएगा, पोजीशन, तो हमारी एग्जांपल में 5 था वो नंबर, तो आप यूजर से इनपुट करा सकते, ठीक है, ओके। ये अब हमारा जो लूप है ये i माइनस माइनस होगा, ठीक, बिकॉज इट इज नाउ ये बैक से चल रहा है, रिवर्स ऑर्डर। नाउ व्हाट यू आर डूइंग, ये i के ऊपर जो भी मेरे पास में एरे एलिमेंट पड़ा है वो i+1 पोजीशन पर चला जाए, ठीक है, मतलब आपके पास में जो थर्ड एलिमेंट है, जो भी थर्ड पोजीशन पर एलिमेंट है या लास्ट पोजीशन पर एलिमेंट है वो i+1 पर चला जाए। इसका मतलब क्या, कि जो यहाँ पर ai पीछे से शुरू हो रहा है ना, तो इस पोजीशन पर है ये, अब ये वैल्यू ai 10, it should be now shifted to next place. Why? Because a0 is this, a1 a2 a3 and so on up to a10, ये a11 पर शिफ्ट हो जाए। अब आप कहोगे कि हमने तो एरे 10 का लिया है, एरे 11 का कैसे हो गया, हम ऐसे साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। आप पिछले 2 लेक्चर्स में जाके देखना रिकॉर्डिंग में, उसमें मैंने बताया था कि एरे का साइज ऐसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा ऐसे लेके, ठीक है, इस एंड से राइट एंड से हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, सो now what we will do, we are just shifting these elements to the right hand side. So when we are shifting these elements, कहां तक ये लूप चलेगा आपका, यहाँ तक, ये जो n पोजीशन तक, ठीक है। लास्ट में जब ये लूप आपका खत्म होता है, तो इट मीन्स राइट नाउ यू आर एट दिस पोजीशन, POS पोजीशन पर आप आ गए हैं। नाउ यू हैव टू, इस लूप के बाद में यू जस्ट हैव टू पुट दिस नंबर इन दैट एरे पोजीशन, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, क्या कि आप लूप से, देखो क्या है इस डायग्राम में, देखते हैं आप लूप लगा के आप डायरेक्टली इस पोजीशन पर पहुंच गए हैं। ओके, जब आपने लूप खत्म किया वो यहाँ पर आके खत्म हो गया, एंड व्हेन यू से एरे पोजीशन, जो आपने ये POS डाला है पोजीशन, देयर डायरेक्टली यू कैन पुट दिस नंबर इज इक्वल टू 50। और यहाँ पर इस एग्जांपल में हमने यूजर से नंबर लिया था NUM, फाइन, तो डायरेक्टली यू कैन पुट दिस नंबर। अब इससे क्या हो गया, यहां तक आपने एक एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया है बाय दिस कोड। ओके, अब आपको प्रिंट भी करना है, अब आपको क्या करना है, लास्ट में दिखाना है एरे को प्रिंट करके, ठीक है। अब एक इसमें ध्यान देना इस चीज में, तो जब आपने इस एरे को, इस एरे में आपने एक वैल्यू को इंसर्ट कर दिया है, राइट, तो
अब जो ये एरे है टोटल कितने एलिमेंट्स का हो गया? 11 एलिमेंट्स का। अगर ये पहले 10 था तो +1 किया ना आपने, इंसर्ट किया है एक एलिमेंट, 1 एलिमेंट, तो नाउ दिस एरे विल बी ऑफ टोटल 11 एलिमेंट्स। तो अब इसको आपको प्रिंट करना है, तो क्या करते हैं, हम लूप लगाते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, प्रिंट एफ करके AI लगा देते हैं। यस, तो आपको ये ध्यान देना है कि पहले जो आपका 10 एलिमेंट्स का एरे था अब वो 11 का है। ठीक है, अगर पहले ये n एलिमेंट्स का एरे था तो अब ये n+1 तक एरे जाएगा। ठीक है, तो अर्लियर इट वाज I less than equal to n-1, but now it will be I less than equal to n, or you can take I less than n और फिर I less than यहाँ n+1, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, so this is the concept of insertion in of an element in an array. ठीक है, so I hope this is clear to you. So first we have to take input, जो आपने इनपुट लेना है, एरे को इनपुट लोगे, देन जो आपने डेटा इंसर्ट करना है उसका इनपुट लोगे, और कहाँ पर इंसर्ट करना है, एरे में कौन सी पोजीशन पर एलिमेंट को इंसर्ट करना है, वो सब आपने यहाँ से इनपुट ले लिया। नाउ देन यू विल बी शिफ्टिंग द एलिमेंट्स। शिफ्टिंग के लिए आपको क्या करना है, एक लूप लगाना है, और फिर लास्ट में आप उस पोजीशन पर पहुंच के एक नंबर वहां, यू विल बी प्लेसिंग दैट नंबर इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन। यस, सो फॉर दैट प्लेसमेंट दिस इज द कोड with the help of assignment operator. And at the end, if you want to if you want to display that how this array element is, how this extra element is added in that array, उसके लिए आप क्या करेंगे, you will be displaying those values through printf, but you will be putting here a loop. Okay, yes, so that was the concept of insertion in an array. Next is the concept of deletion of an element in an array. फिर से हम पहले concept देखेंगे, then we will look at the program. Now this is an array that is given to you, 5 - 3 7 6, ये सब आपके पास में elements दिए हैं, total 10 elements हैं इस array में. Okay, so now if you have to delete an element, फर्स्ट आप देखो, सबसे पहले आपके पास में एरे होना चाहिए, उसमें आप यूजर से इनपुट करवा सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू टेक एन एरे, इफ द वैल्यूज आर नॉट गिवन देन यू हैव टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। फाइन, ओके, नेक्स्ट स्टेप इज दैट you will ask the user that which element or at which index, the position of the element, you will ask that element has to be deleted. Okay, so if this position is 6th position, means 7th position total, because index is starting from 0 here, so this is now 7th position. So if you want to delete this element, तो क्या होगा, ये सारे जो पीछे वाले एलिमेंट्स हैं ये यहाँ पर आगे प्लेस हो जाएंगे। यस, ठीक है, सो ये सब आगे जाके देखिए, तो इफ आई डिलीट दिस एलिमेंट 8, so what will happen, I will again use this assignment operator again in a loop. So just have an idea in the mind that this 3, if you replace, if you say A7, A6 is equal to A7, तो क्या होगा, 3 will be now placed at this position. Okay, so 8 अपने आप से delete हो गया directly. norm एक simple से assignment operator से, if you are assigning this value, this 3 to this A6, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा आपका, ये 8 चला जाएगा, तो दिस 3 विल बी हेयर, बट ये तो 3 और 3 हो जाएगा फिर 0 4, ऐसा तो नहीं है, तो डुप्लीकेशन हो गई। हम क्या करेंगे, बाकी वाले ये जो पीछे वाले एलिमेंट्स हैं उसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, तो उसके साथ में क्या होगा हमारे पास में, ये जैसे 3 यहाँ आ गया, 0 आगे इधर आ जाएगा, 4 यहाँ। So now you can see at the last position, अब ये last element है 4, last position में हमारे पास में एक और copy of data यहाँ रह जाती है, इसको हम देखेंगे नहीं, we will not consider this 9th. Okay, so when you have to print the values at the end, we will print from index 0 to 8 only, because ये तो हमारे पास में, ये हमारे पास में एक extra value ही रह जाती है in the array. Okay, so I am repeating this, that if you have to delete an element from the array, we will consider the index, और उस index पे हम again we will take a loop,
और फिर उससे असाइनमेंट ऑपरेटर से यहाँ से इधर से हम ये वैल्यू सब यहाँ पर डालते जाएंगे, ठीक है। अगर ये वाला एलिमेंट होता, फॉर एग्जांपल ये 7 को आपको डिलीट करना है, तो भी ऐसे ही होता कि यहाँ पर हम शिफ्टिंग ऑफ एलिमेंट्स कर देते, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द प्रोग्राम। सो फर्स्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमें क्या क्या इनपुट करवाना है। सबसे पहले एक एरे को इनपुट करवाना है। तो एरे को इनपुट करवाने के लिए आपको पता है आप क्या लेंगे, लूप में यू विल टेक अ स्कैनफ, ओके। so you will take ampersand array c, so c here वेरिएबल है जो that will go from 0 to n, less than n, okay. So next you have to ask the user, enter the location where you wish to delete the element, okay, that position or that index, ये भी आप क्या यूजर से इनपुट कराएंगे। अब हमें क्या करना है, शिफ्टिंग ऑफ एलिमेंट्स। नाउ फर्स्ट यू हैव टू सी द पोजीशन, ठीक है। आपको पहले पोजीशन, okay, so first we'll check, see if position is greater than n, greater than equal to n plus 1। जैसे अगर आप ये कहो कि यहाँ पर आप इंडेक्स, ये यहाँ 10 एलिमेंट्स हैं और आप इंडेक्स 15 का एलिमेंट डिलीट कर दो, तो आप क्या कहोगे कि वो तो हमारे पास में है ही नहीं एलिमेंट, हमारा तो यहाँ इंडेक्स ही कहाँ तक है एलिमेंट्स, यहाँ इंडेक्स ही 9 तक है, ठीक है। सो देन वी विल से दैट डिलीशन इज नॉट पॉसिबल। अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पोजीशन से हम अपना लूप स्टार्ट करेंगे एंड दैट विल गो फ्रॉम दिस पोजीशन -1 to n-1। अगेन देयर विल बी शिफ्टिंग ऑफ एलिमेंट्स। क्या है शिफ्टिंग, जैसे जो भी आपका राइट हैंड साइड में पड़ा है एलिमेंट वो अब लेफ्ट पोजीशन पर जाएगा, मतलब c+1 में जो पड़ा है वो c पे जाएगा, यस। तो इससे क्या होगा, आपका जो एलिमेंट है डायरेक्टली इट विल नॉट बी, यू कैन नॉट से इट इज अ डिलीशन, बट यू आर जस्ट ओवरराइटिंग इट। तो आप उसको असाइनमेंट ऑपरेटर से उसको रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है। एंड एट द एंड व्हाट यू विल हैव टू राइट, यू विल हैव टू प्रिंट द एरे, ठीक है। इसमें अगर पहले हमारे पास में यहाँ लेस देन n टोटल एरे था 10 एलिमेंट्स का, अब यहाँ पर आप 9 तक लिखोगे, n-1 तक, और सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर दोगे, ठीक है। Yes, I hope it is clear. If you have any doubt, please ask me in insertion and deletion. If you have any doubt in insertion and deletion in an array, please ask me. Okay, then we will shift to merging of two arrays. तो मेरे पास में अब दो arrays हैं, ठीक है। ये 5, 2, 7, 3, ये मेरे पास में एक array है। So I am naming it as A. This is array A and this is array B. Okay. तो ये अगर A array है तो इसका मतलब क्या, एलिमेंट्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, A0, A1, A2, A3। ऐसे जो ये B array है तो उसके एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, B0, B1, B2 and B3, right? Now my focus is to merge this array, okay? So I have to merge this array. हम क्या करते हैं, let us suppose I am taking this array as a new array, m array मैंने ले लिया, तो मेरा रिजल्ट में जो आएगा, अच्छा एक तो है नॉर्मल के आप क्या करो इसको मर्ज कर दो, ठीक है। नॉर्मली आप 5, 2, 7, 3 लिखो एंड देन 6, 4, 1, 7 लिखो एट द एंड। इसको मैं एक, बट ये जो एग्जांपल है फॉर दिस पर्टिकुलर पिक्चर वी हैव दिस एरे एज सॉर्टेड एरे। पहले हम नॉर्मल वाला एक वो करते हैं। सो फॉर अ नॉर्मल एरे इफ आई हैव I'm just writing, if I have this array, मेरे पास में A5 का array है and I am taking these variables as 1, 2, 3, 4, 5 and then ये मेरे पास में एक array है और फिर ऐसे मेरे पास में एक B array है जो कि इसमें 3 elements हैं, okay? So I am giving values 11, 5, 2. So these are the values for the second array. तो अगर मेरे को merged एक array बनाना है, so I'll take a third array, ठीक है। उसका अगर ये मेरे पास में m, जैसे मेरे पास में ये 5 और 3 हो गया ना टोटल इसका इंडेक्स, तो टोटल एलिमेंट्स मेरे पास कितने हैं 8। क्यों ना मैं जो थर्ड एलिमेंट एरे लूंगी उसका इंडेक्स में 8 कर देती हूँ। Why? Because this array will now
because this is the result of merging of these two arrays. Yes. So what I will do, I will say now I am declaring an array of 8 elements. तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो. आई एम नॉट मेकिंग द होल प्रोग्राम, बट बाद में क्या करोगे, जैसे कि सी आप एक लूप लगाएंगे और फिर क्या होगा, उसके अंदर आप एक यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये सी का जो एरे है, तो दैट यू विल बी टेकिंग हियर. सी एरे में किसके एलिमेंट्स डालना शुरू करेंगे, ए के एलिमेंट्स को. ठीक है. सी 0 पे ए 0 आना चाहिए, सी 1 पे ए 1 आना चाहिए, सी 2 पे ए 2 आना चाहिए. यस, ऐसे ही होगा ना. जैसे अगर मैं सी 0 पे, देखो सी 0 पे मेरे पास में क्या आना चाहिए, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इसमें 1. ऐसे ही जो सी 2 होगा, सी आई एम सॉरी सी 1 है जो, उसके ऊपर क्या आना चाहिए, 2, ये वाली वैल्यूज. ठीक है. तो ये मर्ज करने के लिए, तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, आई कैन राइट दैट दिस I goes from 0, that goes from I less than 1, 2, 3, 4, 5. If it goes from 0, so it is less than 5, and I plus plus. ठीक है. तो इसमें क्या आएगा, I. ओके. तो जो भी मेरे पास में जब ये लूप चल जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो मेरे पास में C लास्ट में क्या आएगा, C5, C4 पे मेरे पास में क्या आएगा, इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4. तो यहाँ 5 वैल्यू आएगी. ठीक है. मतलब C का सारा जो A एरे है, मैंने वो सारा C में उठा के डाल दिया है. तो नाउ C इज ऑल्सो फिल्ड. तो C के पहले जो 5 एलिमेंट्स हैं वो कौन है, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या होगा, ये C5 तक पहुंच गया है. ठीक है. ये C4, टोटल 5 एलिमेंट्स है, तो C4 0 to 4. तो अब क्या होगा, नाउ आई विल पुट, मेरे पास में अब यहाँ पर C5, यहाँ पर मेरे पास में यहाँ क्या होना चाहिए, अब मुझे B के एलिमेंट्स डालने हैं. यस. तो यहाँ पर B0 होना चाहिए. यस. तो यहाँ पर क्या होगा, B0. तो B0 जो है, फर्दर जो C6 रहेगा उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर B का फर्स्ट एलिमेंट. यस. ऐसे हमारे पास में मर्ज हो जाते हैं. सी आई एम यूजिंग ओनली असाइनमेंट ऑपरेटर. ठीक है. आई एम यूजिंग ओनली असाइनमेंट ऑपरेटर. सो विद दिस प्रोसेस व्हाट हैपेंस, यहाँ पर मेरे पास में क्या होगा, only with this assignment operator I am just assigning the values of this array into the array C. ओके. तो यहाँ अब मेरे इसको भी आप लूप में डाल सकते हो. सो फॉर int आप j ले लो एक, चाहे, है ना. तो आप j को 0 ले लो. j अगर आपने 0 लिया है तो j यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं, 0, 1, 2. so this will be now less than 3, and now I sorry j plus plus. यहाँ पर आप I डाल, सॉरी j डाल देंगे, और साथ में यहाँ क्या होगा, see now this will be different. यहाँ आप क्या करेंगे, ये तो आपकी लाइन रहेगी नहीं लूप में, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपने 5 डाला है, सो दैट विल बी 5 प्लस हो जाएगा. दैट विल बी 5 प्लस 0, 5 प्लस j हो जाएगा. ठीक है. 5 प्लस क्यों, क्योंकि एनीवेज ये j तो 0 आएगा, और ये क्या है, 4 ऑलरेडी यहाँ तक, C4 यहाँ तक हो गया है, और ये क्या होगा, 5 प्लस 0, देन 5 प्लस 1, 5 प्लस 2, एंड सो ऑन. ठीक है. तो जब आप लास्ट में आप C में क्या होगा, C का एरे सारा फिल हो जाएगा विद द एलिमेंट्स, और फिर लास्ट में आप विद द हेल्प ऑफ लूप नाउ यू कैन प्रिंट द वैल्यू ऑफ दिस C का एरे आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो. तो दैट विल रिप्रेजेंट द मर्जिंग ऑफ टू एरेज. ठीक है. डायरेक्टली आपको पहले एक एरे उठा के असाइन कर देना है लाइक दिस, एंड देन you have to assign the second array. So that will be called a merging of two arrays. But आपके पास में एक another sort of problem can come, that if it is asked that you have to sort this array also. Before merging these arrays into one array, you also have to sort this array. So what will be done for that? Okay, so this is our program for merging. So here they are taking array 1, array 2, and array 3. So first you are putting input elements in the first array. Okay.
then input number of elements to be stored in the second array, and then you are taking input of the second array. तो ये दो आपने arrays आपने अभी ले लिए हैं. ठीक है. देखो, अगर आपको यहाँ पर देखो, first we'll understand the concept. So if you want to merge these arrays, तो सबसे पहले आप यहाँ पर comparison करेंगे इसका in numbers का, right? When you have to compare, so जैसे हम if condition लगाते हैं, so that will be in a loop. When we are generalizing this comparison, that will become in a loop. So we will take a loop and we will put some if condition जिसमें these values, जैसे a0 को मैंने यहाँ पर compare किया है, यहाँ variable से b के यहाँ element से, yes, so that will be compared, और इनमें से जो भी greater, now this is in descending order, so जो भी इसमें greater रहता है, so that will be now that will be now put at the first position of the array. Okay, so for that now I am taking size. Initially we have taken size of the merged array is sum of the sizes of the two arrays. Yes, so now what we have to do, sort in the array in the descending order. So for that I am first taking see, यहाँ पर आपका जो element है वो compare हो रहा है, ठीक है, और even you can put them in one array and then you can sort. आप उस पे बाद में sort लगा सकते हैं. So both way you can do. इधर आप दो में comparison करके यहाँ पर comparison करके फिर आप उसमें पहले sort करके डाल सकते हैं. Otherwise you first merge them and then you put you implement a sorting algorithm कि आप उसके ऊपर बाद में एक sort लगा दीजिए इनके ऊपर. ठीक है. Only 1 minute is left to end the lecture. So if you have to ask anything, please ask me. This we can discuss again. Searching, then we have to go for searching also. Okay. If you have any questions, please ask me. We have only 1 minute left. If you have any questions, please ask me. Test will in किस form? Pardon? Karthik, दोबारा